Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine and enjoying your online lectures. Today, this is our 19th lecture, subject Mathematics, class 10, chapter 12. The name of the chapter is Angle in a Segment of a Circle. Week 5, lecture number 19, and today is 24th July 2020. So today we will study the last and fourth theorem of this chapter number 12, which is the last theorem of this chapter. So the statement of the theorem is the opposite angle of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary. We have to prove that the opposite angles in a quadrilateral which is inscribed in a circle is supplementary, mean 180 degree. So first of all, we are studying the statement of the theorem. So here the opposite angle of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary. So here you must know what is meant by a quadrilateral. Quadrilateral is a closed figure which has four sides, is called quadrilateral. So of course there are four angles in a quadrilateral and the two pairs of opposite angles. So therefore it is written here the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary. So the statement is shown in two colors. This yellowish color is given part and this pinkish color is required part. So the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle. Now here inscribed, what does it mean? It means a circle which passes through the four vertices of a quadrilateral. Means we have a figure which has four sides and a circle is passing through the three vertices of this quadrilateral. So this means inscribed. Means a quadrilateral is inscribed in a circle. इसको अच्छी तरह समझ लें. क्या कहता है कि the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary. इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होगा जिसको उर्दू में चौकोर भी कहते हैं. ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है यानी एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है हमारे पास जिसके चार साइडें हैं, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, मींस कि एक ऐसी सर्कल है जो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से पास हो रही है. So this quadrilateral is called inscribed quadrilateral. Inscribed in a circle means that the circle is outside and the quadrilateral is inside the circle, but the circle touches the vertices of the quadrilateral, intersecting the vertices of the quadrilateral. So अगर ऐसा सिचुएशन है कि क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर जो कि चारों वर्टिसेस से वो सर्कल पास हो रही है, तो फिर इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे. ये जाहिर बात है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चार साइड्स है, तो इट इज नेसेसरी कि इसके चार एंगल्स भी है, या
दो पेयर्स है अपोजिट एंगल्स के, तो वो जो अपोजिट एंगल्स है आपस में क्या होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे। मीन्स कि उन दोनों को अगर आप प्लस कर लें द रिजल्ट विल बी 180 डिग्री। सो इसका मतलब ये है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। इसका यही मतलब हो गया कि एक क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल के अंदर मौजूद है, अंदर है और सर्कल बाहर है और चारों वर्टिसेस से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा, यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एज यूजुअल हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सो ये हमारे पास फिगर है, देखें ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि इस सर्कल के अंदर बना हुआ है। मींस कि ये जो सर्कल है जिसका सेंटर ओ पॉइंट पर है, ये सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से पास हो रही है। वर्टिसेस का मतलब है ये ए एक वर्टिक्स हो गया, बी सेकंड वर्टिक्स है, सी थर्ड वर्टिक्स है और डी जो है वो 4 वर्टिक्स है। तो ऐसे फिगर को जिसमें ए बी सी डी ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। सो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो इनसाइड द सर्कल है और सर्कल जो है वो आउटसाइड है और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस को टच कर रही है। मींस के चारों वर्टिसेस से पास हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, हमारे पास 4 साइड्स है, ए बी एक साइड हो गया, बी सी सेकेंड साइड हो गया, सी डी जो है वो थर्ड साइड है और डी ए या ए डी जो है इसका फोर्थ साइड है। सिमिलर एंगल ए जिसको हम 1+3 भी कह सकते हैं, सिमिलर सी 5+6, ये जो एंगल है ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। सिमिलरली एंगल बी जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है और एंगल डी जो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक है, ये दोनों एंगल्स क्या है, ये हमारे पास अपोजिट एंगल्स है। तो कहता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है, मींस एंगल वो ए प्लस एंगल सी, इसका सम 180 डिग्री की इक्वल होगा। इन अदर वर्ड्स हम इसको टू राइट एंगल्स भी कह सकते हैं कि इन दोनों का सम जो है वो टू राइट एंगल्स के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। In other words, we can say that the sum of these two angles, that is angle B plus angle D, will be equal to two right angles, because 180 is equal to two right angles. So we have to prove that A plus C is equal to two right angle and B plus D equal to two right angles. तो इस पर्पस के लिए हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं। अब देखिए गिवन में हमारे पास क्या है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल इसके वर्टिसेस ए बी सी और डी से पास हो रही है। आर ए पॉइंट पे टच कर रही है, बी पॉइंट पे टच कर रही है, सी पॉइंट पे टच कर रही है और डी पॉइंट पे इस क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है। ये सर्कल जो बाहर बनी हुई है क्वाड्रिलेटरल से, उसको पॉइंट ए बी सी डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है या इससे पास हो रही है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर क्या होगा, हमने प्रूफ क्या करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल सी, दिस मस्ट बी इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मीन टू राइट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल मीन 180 डिग्री।
When the sum of two angles is equal to 180 degree, then the angles are called supplementary angles. So here A plus C is equal to two right angles, and similarly angle B plus angle D, this must be equal to two right angle or a supplementary angle. So here again we have to write angle B plus angle D must be equal to 2 times right angle. ये हमने प्रूफ करना है। इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या लिख लिया, गिवन लिख लिया, उसके बाद टू प्रूफ। गिवन में हमने जस्ट ये मेंशन किया कि ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर बना हुआ है, या सर्कल ने इसको इंस्क्राइब्ड किया हुआ है, उस सर्कल ने जिसका सेंटर ओ पॉइंट पे है। और प्रूफ हमने ये करना है कि इसके अपोजिट एंगल जो कि ए और सी बन रही है या बी और डी बन रही है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। तो इसके लिए हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है कि ड्रॉ ओ ए एंड ओ सी, नेम द एंगल्स एज 1 2 3 4 5 6 एज शोन इन द फिगर। ड्रॉ ओ ए को ड्रा कर ले, एंड ड्रा ओ सी को ड्रा कर ले। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप इस तरह भी लिख सकते हो कि ज्वाइन पॉइंट ओ विद ए एंड सी एंड नेम्स द एंगल एज 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास इस तरह के एंगल्स बन जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया कि सेंट्रल पॉइंट ओ को हमने पॉइंट ए और पॉइंट सी जो कि वर्टिसेस ऑफ क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके साथ ज्वाइन किए, तो हमारे पास ये एक इसमें ओ पॉइंट पे भी दो एंगल्स बन गए जिसको हम ए ओ सी कह सकते हैं। ये ए ओ सी जिसको हमने 4 से मेंशन किया है, और ए ओ सी हम इसको भी कह सकते हैं जिसको हमने 2 से मेंशन किया हुआ है। यानी इन एंगल्स को हमने अपने तरफ से नेम दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5 एंड 6। अब इसको प्रूफ में देखते हैं। देखिए ये हमारे पास प्रूफ है, दो पार्ट, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। क्या है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए डी सी। फिगर में देखें ए बी सी, angle 2 is the central angle standing on the same arc ADC। ADC कौन सा है, देखें A, D और C, यानी हम इस आर्क को कंसीडर कर रहे हैं। ये क्या है, ये मेजर आर्क है, और ये ABC इसका माइनर आर्क है। तो एंगल 2 हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ADC means with reference to the arc ADC, angle 2 is central angle, while ACB is the circumangle। यहाँ पे हमने लिख लिया कि standing on the same arc ADC, angle 2 is the central angle, whereas ACB is the circumangle। ये हमारे पास इस आर्क के रेफरेंस से ये जो एंगल 2 बन रही है, यहाँ पे O पॉइंट पे जो हमने मेंशन किया है, AOC भी इसको कह सकते हो, ये एंगल हमारे पास क्या है, ये सेंट्रल एंगल है, जबकि एंगल A, ये पॉइंट A C B एंगल हमारे पास क्या है, ये एक सर्कम एंगल है। ठीक हो गया। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, क्यों ये इस तरह है, क्योंकि आर्क ADC ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, आर्क ADC विद द सेंटर O। आप जरा इसको दोबारा देखें, क्या है हमारे पास कि एंगल standing on the same arc ADC mean considering this arc ADC, angle 2 will be the central angle, while angle B
ये है एंगल ए बी सी, सॉरी मैंने उधर ए सी बी कहा, वो ए सी बी नहीं है बल्कि एंगल ए बी सी। ए बी सी कौन सा एंगल है? ये वाले, जो एंगल बी भी आप इसको सिंपली कह सकते हो। सो दिस एंगल इज सर्कम एंगल while two angle is central angle regarding to this arc ADC। तो ये हमने लिख लिया कि arc ADC of the circle with center O, this angle 2 is central angle while angle B is circumangle। Therefore measurement of angle B, इसकी मेजरमेंट क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ एंगल 2, इस एंगल का ये हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा? फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है? थ्योरम 1 लिखा है, लेकिन आपने थ्योरम 1 नहीं लिखना क्योंकि इसके नंबर नहीं मिलेंगे। उसमें हमने क्या कहा था कि द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज ऑफ द माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो ये सेंट्रल एंगल है, ठीक है, इस आर्क का, और ये इसका जो बाकी आर्क रह गया उसका ये क्या है? सर्कम एंगल है। तो हमने कहा कि ये जो एंगल 2 है दिस विल बी डबल्ड ऑफ दिस एंगल B, और इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट B इज हाफ ऑफ एंगल 2। तो हमने यहाँ पे ये मेंशन किया पहले कि ADC हमारे पास आर्क हम कंसीडर कर रहे हैं, एंगल 2 जो है वो सेंट्रल एंगल है, B एंगल सर्कम एंगल है, तो लिहाजा B एंगल की जो मेजरमेंट है वो हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल 2 की इक्वल होगा। और रीजन में हम ये लिखेंगे कि द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज ऑफ द माइनर आर्क इज doubled that of the angle subtended by the corresponding major arc। अब दूसरे को कंसीडर करें। सिमिलरली स्टैंडिंग ऑन द आर्क ABC, अब इस ABC आर्क को कंसीडर कर लें, ये वाला जो आर्क है, ठीक है, ये ABC आर्क, इसको कंसीडर करें तो एंगल 4 हमारे पास सेंट्रल एंगल बन रहा है, जबकि एंगल ये D एंगल जो है ये हमारे पास सर्कम एंगल है। सो फिर ये क्या हो जाएगा कि एंगल D जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल 4 हो जाएगा। जरा दोबारा इसको देखें, क्या कह रहे हैं हम कि आर्क कौन से कंसीडर कर रहे हैं? ABC, ये आर्क हम कंसीडर करें तो फिर ये जो एंगल 4 है ये हमारे पास क्या बनेगी? ये सेंट्रल एंगल बनेगी, जबकि ADC हमारे पास कौन से? ये सर्कम एंगल बन जाएगी। तो अगेन बाय द फर्स्ट थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट थ्योरम, दिस एंगल 4 इज डबल्ड ऑफ दैट एंगल D, or in other words angle D is half of the angle 4। so therefore हमने यहाँ पे लिखा है कि measurement of angle D is equal to half of measurement of angle 4। और इसके रीजन में अगेन वही चीज हम लिखेंगे कि the measure of the central angle is of the minor arc is of a circle is doubled that of the angle subtended by the corresponding major arc। इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। जबकि पहले वाले को हमने इक्वेशन 1 कहा था, जिसमें हमने कहा था कि एंगल B जो है वो हाफ ऑफ एंगल 2 की इक्वल है, उसको हमने 1 कहा था। यहाँ पे एंगल D हाफ ऑफ एंगल 4, ये इसको हमने इक्वेशन 2 कह दी है। अब नेक्स्ट देखें, इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D, B इक्वेशन 1 से ले रहे हैं और D इक्वेशन 2 से ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, यानी B किसकी इक्वल था? मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, प्लस D किसकी इक्वल है? मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, इसकी इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमने किया।
जब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास हाफ ऑफ 2 प्लस हाफ ऑफ 4 बी प्लस डी की इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों में ये हाफ कॉमन है, इसको कॉमन ले, हाफ को कॉमन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, हाफ कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 आ जाएगा। अब 2 प्लस 4 क्या है, जरा इसमें देखें, ये 2 है, ये जो इस लाइन से लेकर इस साइड पे यहाँ इस लाइन तक ये 2 है, और इस लाइन से इस लाइन तक ये जो एंगल 4 जिसको हमने कहा हुआ है ये एंगल 4 है। तो 2 प्लस 4, ये देखिए यहाँ से लेकर अगर दोबारा हम इस पोजीशन पे पहुंच जाए तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और कंप्लीट सर्कल की एंगल क्या है, 360 डिग्री है, यानी ये टोटल सेंट्रल एंगल बन जाएगी, और टोटल सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या है, वो 360 डिग्री है या 4 राइट एंगल्स है। यानी अगर आप 360 को 4 से डिवाइड करें तो 90 आ जाएगा, मीन्स कि ये 490 के डिग्री के एंगल से, 490 डिग्री के एंगल से। तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू टोटल सेंट्रल एंगल आ जाएगा। और मैंने बता दिया कि टोटल सेंट्रल एंगल हमारे पास किसकी इक्वल होता है, सर्कल के केस में 360 डिग्री के। टोटल सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, or in other words we can say that these are 4 right angles. So 4 right angle की equal half of 4 right angles आ जाएगी। अब 2 से इसको डिवाइड कर लें, 4 को 2 के साथ कैंसिलेशन करें या 4 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 2 राइट एंगल्स आ जाएंगे। लेफ्ट साइड को अगर दोबारा देखें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या था, b प्लस डी था, तो वही b प्लस डी हम यहाँ भी लिखेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल b प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल d दैट इज इक्वल टू 2 टाइम राइट एंगल्स। ये 2 राइट एंगल्स के इक्वल हो गए। 2 राइट एंगल मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स 180 डिग्री। 2 राइट एंगल मीन 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 दैट इज इक्वल टू 180। सो ये 180 बन जाएगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट में हमने कहा था कि द एंगल अपोजिट टू the opposite angles of a quadrilateral inscribed in a circle are supplementary। तो ये B और D हमारे पास देखें, ये B और D इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स है, तो ये हमारे पास क्या है, ये 180 डिग्री के इक्वल है। हमने प्रूफ कर लिया कि 2 राइट एंगल्स के या 180 डिग्री के इक्वल है। Similarly, we can prove that measurement of angle A plus measurement of angle C, देखिए A किसकी इक्वल है, 1 प्लस 3 की इक्वल है, और 5 प्लस 6 की इक्वल 6 C एंगल है। तो 1 प्लस 3 को अगर आप देखें A बन जाएगा, और 5 प्लस 6 को देखें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो C एंगल बन जाएगा। तो जैसे हमने ये प्रूफ किया इसी तरह हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। तो ये हम प्रूफ कर सकते हैं। इसकी दोबारा मतलब उतनी लेंथी जो है वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक को हमने प्रूफ किया पूरी डिटेल के साथ, तो दूसरा हम पेपर में भी इसी तरह लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। तो ये 2 राइट एंगल के इक्वल है, ये A प्लस सी, ये भी राइट एंगल की इक्वल हो, 2 राइट एंगल की इक्वल हो जाएंगे, और B प्लस डी जो है ये भी 2 राइट एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। सो हमने प्रूफ कर लिया, यानी स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम वाज that the opposite angles of the quadrilateral inscribed in a circle are supplementary। ये हमने प्रूफ करना था। उस पर्पस के लिए हमने ये इस तरह का फिगर लिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि ABCD है, और एक सर्कल है उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है जिसका सेंटर O पॉइंट पे है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया कि O को हमने A के साथ ज्वाइन किया, O को हमने C के साथ ज्वाइन किया, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आ गया कि ये एक सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं।
सेंट्रल एंगल और सरकम एंगल की हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि अगर हम इस आर्क को कंसीडर करते हैं ADC को, तो ये एंगल 2 हमारे पास सेंट्रल एंगल बन रही है और ये जो एंगल B है ये हमारे पास सरकम एंगल बन रही है। और फर्स्ट थ्योरम का हमने स्टेटमेंट यूज किया कि फर्स्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि क्या था कि the measurement of the central angle of the minor arc is doubled that of the angle subtended by the corresponding major arc। तो ये सरकम एंगल का डबल हो जाएगा। फर्स्ट थ्योरम में हमने प्रूव किया था। सो बी को हमने लिख लिया कि हाफ ऑफ एंगल 2 के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम इसको कंसीडर करते हैं ABC आर्क को कंसीडर करें तो 4 हमारे पास सेंट्रल एंगल बन रही है और ये जो एंगल D है ये हमारे पास क्या बनेगी, सरकम एंगल। तो 4 इज डबल्ड यानी 4 इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल D, या इन अदर वर्ड्स D इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 4। फिर एक को हमने इक्वेशन 1 कहा था, दूसरे को 2 कहा था, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई और इन दोनों से हाफ को हमने कॉमन किया तो 2 + 4 और 2 + 4 हम फिगर से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये 360 डिग्री के इक्वल है या 4 राइट एंगल्स के इक्वल है। तो 4 राइट एंगल्स को अगर आप हाफ से डिवाइड कर लें या 2 से डिवाइड कर लें, यानी हाफ से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड कर लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 राइट एंगल्स बन जाएंगे। सो B + D = 2 राइट एंगल। एक हमने प्रूव किया कि B + D जो है वो राइट एंगल्स के 2 राइट एंगल्स के इक्वल है। तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल A + एंगल C = 2 राइट एंगल्स, और यही हमने प्रूव करना था। तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अगेन मैं बता दूं आपको कि इसको अच्छे तरह आप 3-4 दफ़ा लेसन करें, बुक अपने सामने रखें, कॉपी अपने सामने रखें और इसको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें और फिर खुद से जो है अपने नीट कॉपी में इसको लिख लें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क इन द जूम क्लासेस विच आर स्केड्यूल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मेरी क्लास मंडे ट्यूसडे को 9 बजे जूम पे होगी, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क देयर इन जूम क्लास। लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अच्छी तरह पढ़ ले। ये हमारा लास्ट थ्योरम था, अब हमारे थ्योरम्स का पोर्शन ख़त्म हो गया। यानी चैप्टर 8 में हमने 3 थ्योरम पढ़ लिए, चैप्टर 9 में हमने 5 थ्योरम पढ़ लिए, चैप्टर नंबर 10 में हमने 5 थ्योरम पढ़ लिए, चैप्टर नंबर 11 में हमने 4 थ्योरम पढ़ लिए और चैप्टर नंबर 12 में भी हमने 4 थ्योरम पढ़ लिए। तो ये सारे थ्योरम कॉपी में अच्छी तरह आप क्लीन एंड नीट कॉपी इसकी बनाएं, लेके ये ज्योमेट्री का पोर्शन है। इसके बाद एक 13 चैप्टर हमारा ज्योमेट्री का है, वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, उसके लिए हम अलग कॉपी बनाएंगे। अगर इसमें आपके पास जगह होगी तो फिर इसमें भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये लेक्चर्स आप अच्छे तरह सुन लें, सुनने के बाद अपने क्वेश्चन नोट कर लें अपने पास। और जो जूम की क्लासेस है, सिर्फ मैथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम क्लासेस की बात कर रहा हूँ कि अच्छी तरह अपने लेक्चर सुने, अपने क्वेश्चन साथ नोट कर लें और जूम की जब आपकी क्लास होती है, जिस दिन वो टाइम टेबल आपको दिया हुआ है, शेयर किया हुआ है आपके साथ, तो उस टाइम टेबल के मुताबिक अपने टीचर से, कंसर्न टीचर से वो क्वेश्चन पूछ लें। मैथमेटिक्स के हवाले से मैं बता दूं कि मेरा मंडे और ट्यूसडे को सुबह 9 बजे क्लास होगी, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर लें, मस्ट पार्टिसिपेट कर लें। अपने दोस्तों को भी कहें कि वो ज़रूर जो है उसमें पार्टिसिपेट कर लें और जो भी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह वहाँ पे हम एड्रेस करेंगे। सो हमारा जो है ना वो थ्योरम वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे तरह याद कर लें और इसमें से पेपर में 24 मार्क्स का पोर्शन होता है, मतलब 3 थ्योरम्स आपके पेपर में आते हैं 8-8 नंबरों के। ठीक है, तो इसको अच्छे तरह समझ लो और अच्छे तरह इसको पढ़ लो। अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे फिर पूछ लें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।